خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، خدمت انسانیت کے حوالے سے جماعت احمدیہ کی تاریخ بہت وسیع اور درخشندہ ہے۔ اسی غرض سے قادیان میں سن 1917 عیسوی میں خلافت ثانیہ کے بابرکت دور میں ایک ہسپتال قائم کیا گیا جس کا نام نور ہسپتال رکھا گیا۔ یہ جماعت احمدیہ کا پہلا الوپیتھک طریقے علاج کا ہسپتال تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ جماعت کی وسعت کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کے حوالے سے نمایاں کوششیں کی گئیں اور دنیا بھر میں مختلف ہسپتال اور ڈسپنسریز قائم کی گئیں۔ نور ہسپتال قادیان دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت انسانیت کے جذبے کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب قادیان اور اس کے آس پاس میں علاج و معالجہ کی کوئی سہولیات دستیاب نہ تھیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے علاقہ واسیوں کے لیے اپنے گھر کو شفا خانہ بنا رکھا تھا۔ دور دراز سے لوگ یہاں آتے اور آپ علیہ السلام سے دوائیاں حاصل کرتے تھے، اور اس غرض کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک خاص طبی صندوقچہ بنا رکھا تھا جس میں ہر قسم کی بیماریوں کی دوائیاں ہمہ وقت موجود ہوتی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دن رات تبلیغ اسلام کے لیے کتب کی تصنیف میں مصروف رہتے۔ آپ کو پوری طرح آرام کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ اس کے باوجود جب کوئی بیمار علاج کے لیے آتا، آپ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت سب کچھ چھوڑ کر اس کے علاج میں مصروف ہو جاتے۔ سن 1893 یہ وہ وقت تھا جب لوگ کثرت سے قادیان آنے لگے تھے، اور آپ علیہ السلام کی مصروفیات پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت خاص سے آپ علیہ السلام کو ایک سلطان نصیر عطا ہوا۔ حضرت الحاج مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ قادیان تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے ارشاد پر یہیں کے ہو رہے۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ماہر طبیب تھے۔ آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے قادیان میں ایک مطب کھولا۔ لوگ دور دراز سے آپ کی شہرت کی وجہ سے علاج معالجہ کے لیے قادیان آنے لگے۔ چنانچہ یہ مطب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت دور میں برابر لوگوں کی خدمت کرتا رہا، اور سن 1914 تک اس کی خدمات جاری رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خدمت کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، مولوی صاحب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، ان کے ذریعے کئی غریبوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طبی خدمات جاری رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اپنی دوائیوں کا صندوقچہ تھا جس سے آپ مریضوں کا علاج فرماتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان روحانی قیادت میں نور ہسپتال کی بنیاد مؤرخہ 21 جون سن 1917 کو رکھی گئی، اور ستمبر سن 1917 عیسوی کو یہ عمارت پائے تکمیل تک پہنچی۔
मकामी अतिब्बा ने इलाज मुआलजा का सिलसिला शुरू किया, मगर उस वक्त के हालात के मुताबिक किसी एलोपैथिक सनद याफ्ता डॉक्टर की ज़रूरत महसूस की गई। चुनांचे हज़रत खलीफतुल मसीह हुस्सानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र इंतखाब हज़रत डॉक्टर हशमतुल्लाह साहिब रदी अल्लाह तआला अन्हु पर पड़ी, जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी होने के अलावा एक दुआगो और कामयाब डॉक्टर थे। सन 1919 ईस्वी में डॉक्टर हशमतुल्लाह साहिब रदी अल्लाह तआला अन्हु पटियाले के सबसे बड़े हस्पताल में बतौर सब असिस्टेंट सर्जन की मुलाजमत छोड़कर हज़रत खलीफतुल मसीह हुस्सानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद पर कादियान के नूर हस्पताल में खिदमात के लिए हाजिर हुए। सन 1947 ईस्वी में तकसीम मुल्क के नामसाइद हालात में भी नूर हस्पताल में ज़ख्मियों और बीमारों का इलाज जारी रहा। बाद अज़ां नूर हस्पताल को अपनी जगह से मुंतकिल करना पड़ा और अहमदिया शिफा खाना के नाम से कादियान में जमात की तिब्बी खिदमात जारी रहीं। सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीहुर राबे रहिमहुल्लाह तआला के दौरे सईद में एक बार फिर कादियान में नूर हस्पताल का इजरा अमल में आया और कादियान के वस्त में एक वसी व अरीज़ इमारत का प्लान शुरू किया गया, जो कि सन 2005 ईस्वी को पाए तकमील को पहुंची। मुर्रखा 13 जनवरी सन 2006 ईस्वी को हज़रत खलीफतुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने बाबरकत दौराए हिंद के दौरान बनफ्से नफीस नूर हस्पताल की सारी इमारत का और हस्पताल में मौजूद तिब्बी सहूलियात का मुआयना फरमाया और हस्पताल में नसब यादगारी तख्ती की निकाब कुशाई फरमाते हुए नूर हस्पताल की जदीद इमारत का दुआओं के साथ इफ्तिताह फरमाया। नूर हस्पताल कादियान की इस मौजूदा इमारत में 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर्स जदीद तिब्बी आलात के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मौजूदा ज़माने की जदीद इलाज व मुआलजा की तकनीक के ज़रिए बीमारों का चेकअप के लिए डिजिटल एक्सरे मशीन, डिजिटल लेबॉरेटरी, ECG, अल्ट्रासाउंड वगैरह सहूलियात भी दस्तयाब हैं, जिनके ज़रिए बीमारी की फ़ौरी तशख़ीस होती है। नूर हस्पताल कादियान में ENT, ऑप्थेल्मिक, डेंटल, फिज़ियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी के माहिर डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, जो मरीज़ों को हर किस्म की राहत पहुंचाने में मसरूफ़ुल अमल हैं। सन 2017 ईस्वी में नूर हस्पताल के क़याम पर 100 साल पूरे होने की खुशी में 7 साला तकरीबात मनाई गईं और इस बाबरकत मौके पर नूर हस्पताल में बाकायदा से डायलिसिस की सहूलत का भी आगाज़ किया गया है। नूर हस्पताल कादियान में शोबा होम्योपैथी के ज़रिया भी मुफ्त इलाज का सिलसिला जारी है, जिसमें माहिर डॉक्टर साहिबान खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। नूर हस्पताल कादियान में अब तक कादियान और उसके गिरदो नवाह के लखों मरीज़ हर साल फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं बहुत रात्रे में चोट लगी 6-7 साल हो गए, बहुत खज्जल होया। अंबरसर ते जलंधर बहुत खर्चा किया, मैनू मतलब कोई फायदा नहीं होया। चंगे चंगे डॉक्टरां नूं दिखा लिया, जिहदे करके हुण मैनू पता लगा ते नूर हस्पताल मैं दिखा लिया, बिल्कुल सस्ते इलाज बिल्कुल मैं ठीक हाँ, तुर फिर सकता हाँ। बहुत वधिया हस्पताल है, सारियां सुविधा हैं ते सस्ता भी है ते लागे थां शहर कादियां वे नूर हस्पताल जो अहमदियां दा है, बहुत वधिया। मेरा नाम रवि सिंह है, मैं बसरावा पिंड का जहाँ पे नज़दीक है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। आज से सर 5 महीने पहले मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मेरा शरीर जो था बिल्कुल डेड हो गया था। कोई भी नहीं था कहता डॉक्टर कि ये बेटा चल पाएगा, यानी खुदा ने मेरे को दूसरी ज़िंदगी दी है। अब सभी मेरी जो वेन्स है ना, ये ब्रेन से लेके नीचे तक मेन ये ब्लॉक हो गई थी सारी, तो इसलिए मैं कुछ ना मेरे से चला जाता था, ना उठा जाता था, ना बैठा जाता था। इन्होंने इतनी मेहनत की, 15 दिन के बाद मेरे को बोला कि रवि आज तू अपनी टांगों पे खड़ा हो जा।
मैं डरदा खड़ा ना हुआ, मैं बोला नहीं मैं गिर जाऊंगा, नहीं तू आज खड़ा हो जा। 15 रोज़ के बाद फिर मैं खड़ा हो गया। अब मैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस नूर हॉस्पिटल का, जिन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला ने नूर हस्पताल कादियान को अपनी गैर मामूली बरक़ात से नवाजा और यहाँ पर खिदमत बजा लाने वाले डॉक्टरों और अतिब्बा के हाथ में बेमिसाल शिफा रख दी है। यहाँ दूर दराज से लोग इस यकीन से इलाज के वास्ते आते हैं कि यहाँ मौजज़ाना शिफा मिलती है। मुर्रखा 19 अक्टूबर 2017 ईस्वी को नूर अस्पताल कादियान की खिदमात पर 100 साल पूरे होने पर कादियान दारुल अमान में 7 साला तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस तकरीब में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा आला सतह के सरकारी व सियासी हुक्काम ने शिरकत की और उन्होंने नूर हस्पताल की खिदमात का एतराफ़ करते हुए अपने नेक तासुरात का इजहार फरमाया। समझता हूँ कि हमारे लिए खुशी का मकाम है, फ़ख्र की बात है कि ये हस्पताल हज़ारों साल तक चले, लोगों की सेवा करे, खिदमत करे, इसी तरह मिलजुल कर के हम एक नए हिंदुस्तान की तामीर करें। और जिस तरह ਨੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। तो मैं ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬਤੌਰ ਐਸਐਮਓ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से नूर हस्पताल कादियान तिब्बी सहूलियात के एतबार से रोज़ अफ़ज़ों तरक्कियात का मुशाहिदा कर रहा है और इलाके के लोगों की दुख तकलीफ़ को दूर करने में मसरूफ़ुल अमल है। नूर हस्पताल कादियान का इस ज़िले में बल्कि पूरे पंजाब में अपना एक मुनफरद मकाम है। जिस तेज़ रफ्तारी से ये हस्पताल तरक्की कर रहा है, वहाँ मुस्तकबिल की ज़रूरतों के पेश नज़र मुख्तलिफ़ शोबों के माहिर डॉक्टर साहिबान की यहाँ ज़रूरत है। हुज़ूर अक़दस अय्यद ताला बिन अज़ीज़ हमें बार बार हिदायत देते हैं कि हमें वाक़फ़ीन नौ और वाक़फ़ाता नौ में से ऐसे बच्चे चुनें ताकि वो अपनी पढ़ाई मेडिकल लाइन में करें और फिर MBBS और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करके नूर हॉस्पिटल में ज़िंदगी वक्फ़ करके खिदमत के लिए हाज़िर हों, क्योंकि मुस्तकबिल में भी हमें डॉक्टर्स और सर्जन्स की बहुत ज़रूरत है। हुजूर के इस इरशाद को मद्देनज़र रखते हुए पूरी कोशिश भी की जाती है, बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वाक़फ़ीन नौ और वाक़फ़ात नौ इस MBBS की एंट्रेंस दें और फिर मेरिट के बिना पर दाखिला लें, ताकि बनीनो इंसान की खिदमत डॉक्टर बनकर वो कर सकें इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ ये हमारे वाक़फ़ीन नौ और वाक़फ़ात नौ बच्चे और बच्चियाँ हुज़ूर अक़दस की तरबियत की वजह से उनके अंदर वक्फ़ की रूह है और वो MBBS के लाइन में जा भी रहे हैं और मुकम्मल करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन करने के बाद उनके अंदर एक वक्फ़ की रूह है और वक्फ़ की रूह के तहत वो खिदमत के लिए आते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से नूर हस्पताल कादियान की खिदमत इंसानियत की काविशों में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ है। मरीज़ों से इजहार हमदर्दी और उनके मुफ्त इलाज व मुआलजा का आगाज़ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में आपकी अदवियात के संदूक से हुआ, जो बाद में हज़रत खलीफतुल मसीहुल अव्वल
رضی اللہ تعالی عنہ کے مطب کی شکل اختیار کر گیا۔ خلافت ثانیہ کے بابرکت دور میں وہ نور ہسپتال بنا۔ جماعت احمدیہ کے خلفائے عظام کی عظیم الشان قیادت میں جماعت احمدیہ کی طبی خدمات غیر معمولی وسعت اختیار کر گئی اور پوری دنیا میں پسماندہ لوگوں کو مفت علاج و معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے دنیا بھر میں جماعت احمدیہ کی طرف سے 20 ہسپتال اور سینکڑوں ڈسپنسریز قائم کی گئیں، جو بلا تمیز مذہب و ملت اور رنگ و نسل مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف العمل ہیں۔